اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرمنل لاء کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج زیر بحث ہوگا۔ وہ ٹاپک ہے دیت۔ دیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں سیکشن 299 299 323 یعنی 323 331 331 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 تعزیزات پاکستان 1860 کے جو سیکشن 299 ہے 323 ہے 331 جو ہے وہ اس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے۔ ناظرین اکرام، جب ہم دیت کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا ذہن ہے وہ دین کی طرف جاتا ہے کہ یہ دینی کوئی معاملہ ہے۔ دیت اس مال کو کہتے ہیں جو قصوروار جو ہے مظلوم کو یا اس کے وارث کو جو اس کے ظلم کے سبب جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں رقم دیتا ہے۔ عام زبان میں سے خون کا صلہ یا قیمت کہا جا سکتا ہے۔ قدیم معاشروں میں جب خون کا بدلہ ممکن نہیں ہوتا تھا تو قاتل سے مقتول کے ورثاء کو تاوان کی شکل میں کچھ مال نقد یا مال جنس دلا دیا جاتا تھا۔ البتہ بنی اسرائیل یعنی یہود میں خون بہا کا دستور نہیں تھا، لیکن جیسے اور بہت سے معاملات میں اسلام یہودیت کی نفی کرتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے ظاہری اعتبار سے دیت یا قصاص کی روایت اسلام نے جائز قرار دیتی ہے۔ دیت کے وجود کی دلیل قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 92، جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے یعنی بغیر کسی وجہ کے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا، اسے دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے کا حق ہے کہ وہ دیت قبول کر لے یا قاتل سے انتقام لے۔ ناظرین اکرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افو یہ ہے کہ قتل عمد میں بھی خون بہا قبول کر لیا جائے۔ اتباع بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ دستور کے مطابق طلب کرے اور نہایت اچھے طریقے سے ادا کرے۔ 4 صورتوں میں دیت واجب ہو جاتی ہے: قتل خطا، شبہ عمد، قتل بالسبب، قائم مقام خطا۔ ان سب صورتوں میں دیت اسبات پر واجب ہوتی ہے۔ اسلام کے مطابق دیت کی مقدار اس طریقے سے ہے جناب: 100 اونٹ، 1000 دینار، 10,000 درہم اور دیگر مختلف روایات موجود ہیں۔ قاتل کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے ادا کرے۔ اونٹ سب ایک عمر کے واجب نہیں ہوں گے بلکہ مختلف العمر لازم آئیں گے، جس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ قتل خطا کی صورت میں 5 قسم کے اونٹ دیے جائیں گے۔ 20 جو ہوں گے وہ بنت مخاض یعنی اونٹ کا وہ مادہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور 20 ابن مخاض یعنی اونٹ کے وہ نر بچے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں، اور 20 جو ہے وہ بنت لبون یعنی اونٹ کا وہ مادہ بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور اسی طرح اور 20 حقے یعنی اونٹ کے وہ بچے جو عمر کے چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہوں، اور 20 جزا یعنی وہ اونٹنی جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ شبہ عمد میں 25 بنت مخاض اور 25 بنت لبون اور 25 حقے اور 25 جزے، یہ 4 قسمیں دی گئی ہیں۔ اسلامی قانون میں مسلم، ذمہ، مستامن سب کی دیت ایک برابر ہے، مگر مسلمان خاتون اور غیر مسلم کی دیت مسلمان مرد کی دیت کے نصف ہے۔ ناظرین اکرام، اصل میں اس وقت جو دیت کی رقم ہے تقریباً 43 لاکھ ہے،
43 लाख रुपए इस वक्त 43,01,852 के करीब रुपीस के करीब बनती है, यानी कि ये मर्डर की सूरत में है। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि जी दियत का फ़ायदा जो है ना वो अशराफिया उठा लेती है, जो ज़ालिम लोग हैं वो उठाते हैं। लेकिन हमारा मौजू बहस इस वक्त ये नहीं है। हमारा मौजू बहस जो है वो सिर्फ ये है कि हमने दियत जो है पाकिस्तानी कानून के कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करनी है। नाज़रीन इकराम, 2010 SCMR 748 में ये कहा गया है कि imposition of 6 month rigorous imprisonment in default of diyat payment contrary to said provisions, subsection 2 of section 331 PPC prescribe the consequences of non-payment of diyat that where a convict failed to pay diyat or any part thereof within the period specified in subsection 1, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the diyat is paid in full, or may be released on bail if he furnishes security or surety equivalent to the amount of diyat to the satisfaction of the court, or may be released on payroll as may be prescribed in the rules. अगर वो नहीं पैसे देता तो उसे उसी 6 माह की बामशक्कत कैद होगी, और तावक्त कि जब तक वो रकम अदा ना कर दे दियत की, उसको उसी तरह सज़ा दी जाएगी कि अगर उस जिस तरह के वो दियत का मामला ना होता तो उसको जितनी सज़ा होती। जब वो सज़ा दियत के हवाले, जब तक दियत की रकम वो अदा कर देगा फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, या कुछ करता है, कुछ की वो श्योरिटी दे देता है, फिर भी मामला जो है वो रूल्स के मुताबिक किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, PLD 2010 SC 695 के मुताबिक कॉन्सेप्ट ऑफ बदले सुलह इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ दियत in as much as the provision of subsection 5 of the section 310 PPC and the explanation attached therewith showed that badle sulah is to be mutually agreed between the parties as a term of sulah between them, whereas under section 53 PPC diyat is a punishment, and the provision of section 299E PPC and section 323 PPC that amount of diyat is to be fixed by the court. बदले सुलह जो है ना, उसमें वो फिर जो मैटर है वो आपस में बाहमी रजामंदी से है, उनके म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज टर्म ऑफ सुलह। आपस में वो दोनों ने तय कर लिया जी ठीक है जी हमारी सुलह हो गई है, वो आपस में लेन देन करें ना करें जो भी है। लेकिन अगर अदालत की तरफ से ये तय होगा कि भाई आप इसकी दियत अदा करें, तो अदालत फिर डिटरमिन करेगा कि भाई ये रेट है इस वक्त इस साल का, तो ये रकम तुम उसको अदा करो। नाज़रीन इकराम, इसी तरह PLD 2012 SC 769 इसकी बात करते हैं कि कंप्रोमाइज in between the legal heirs of the deceased and the convict is a type of contract that if the legal heirs of the deceased make a statement before the court of law pardoning the convict, they will be get badle sulah in the shape of diyat amount, and if they forgive the convict in the name of Allah Almighty, they will get reward there from the Allah Almighty. कंप्रोमाइज़ अगर दोनों पार्टीज़ में हो जाता है और उनका आपस में मुआहदा हो जाता है कि वो अदालत में ये बयान दे दें जाकर के हमने सुलह कर ली है या हमने इनको जो है ना माफ़ कर दिया है, सुलह कर दिया, दे विल गेट बदले सुलह इन द शेप ऑफ दियत। वो दियत की सूरत में भी बदले सुलह ले सकते हैं, या फिर वो कहेंगे जी अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी कुछ भी नहीं लिया। इन केस देर आर सम माइनर लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज़, देयर नेचुरल गार्डियन मदर और फादर एज द केस पे बी डू फॉर गिव द कन्विक्ट। अगर तो जो वारसान हैं, जो बंदा फौत हो गया था डिजीज़, उसके माइनर हैं, नाबालग हैं वो जो वारसान हैं, तो फिर उसके जो गार्डियन होंगे उन बच्चों के, नेचुरल गार्डियन माँ या बाप या कोई भी जो हो सकता है, वो माफ़ कर सकता है। बट देयर इंटरेस्ट इज़ टू बी सेफ गार्डेड बाई पेइंग दैम their due share as diyat amount according to the rate of diyat prevailing at the time of arriving of the compromise between the parties, as contract could not be retrospective effect. ये नहीं है कि आपने
3 साल पहले मुआहदा किया था तो पुराना रेट देंगे, जो जिस वक्त रकम अदा करेंगे वो वाला आपने रकम अदा करनी है उस रेट के हिसाब से। तो ये PLD 2012 SC 769 के में ये डिफ़ाइन किया गया है कि दियत अमाउंट जो है वो प्रोटेक्शन होगी, अगर माइनर्स हैं तो उनके नेचुरल गार्डियन जो है वो माफ़ कर देंगे उनके बिहाफ पर, लेकिन रकम बच्चों को दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, 2012 SMER 437 में बयान किया गया है कि अमाउंट ऑफ दियत वुड बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट ऑफ दियत एज द टाइम व्हेन कंप्रोमाइज वाज अफेक्टेड बिकॉज इट वाज द अक्यूज्ड who actually requested victim party to favor him, and if as a result of such favor was extended, then payment of compensation should be determined and made at the rate prevailing at the time when compromise was affected and executed by the court। जिस वक्त अदालत ने वो तो शुरू में सुलह की कोशिश कर रहे होते हैं, ये नहीं कि वो 5 साल से कोशिश कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं तो वो वाला रेट होगा। जब अदालत ने ऑर्डर किया और एग्जीक्यूट किया, अमल दरामद करवाने का कहा, उस वक्त जो दियत का रेट होगा वो निकाला जाएगा। नाज़रीन इकराम, 2019 SMER 1144 में ये करार दिया गया है कि अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 431 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 विद सेक्शन 331 ऑफ द कोड unambiguously ensure continuation of appeal by an offender liable to payment of diyat even after his death। जनाब, वो बंदा मर भी जाएगा, दियत की रकम उसको देनी पड़ेगी, उसके वारस अदा करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2019 SMR 1144 Diyat is among us the punishment provided under the code and according to clause E of section 299 thereof। ये भी एक सज़ा की ही शक्ल है in shape of money। It is compensation payable to the legal heirs of the victim। जो बंदा मरा है, कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी उसके साथ उन्होंने किया, उसके वारसान को ये रकम अदा की जाएगी। वैल्यू वेयर ऑफ इज इक्वलेंट टू 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। चांदी की जो कीमत होगी ना 30,630, वो टू बी डिटरमिन ऑन ईयरली बेसिस। सेक्शन 331 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट एन ऑफेंडर बर्डन with payment of diyat in the event of default shall remain lodged in prison until it is paid full or through installment। अगर वो मुआहदा हो गया उनका आपस में कि ठीक है जी आप दियत की रकम दें, हम आपको छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा? जब तक वो रकम नहीं देता वो अंदर ही रहेगा जेल में, या फिर वो कर लेता है जी मैं इंस्टॉलमेंट कर दे, मैं इतने अभी दे देता हूँ बाकी किस्तें कर दूँ, तब वो however under section 3 thereof in the event of his death it shall be recoverable from his estate। रियाओ के आ गया, बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके विरासत होगी, उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी, उसको बेचकर उनको लीगल हेयर्स को पैसे दिए जाएंगे दियत के जो बैलेंस होगा। नाज़रीन इकराम, PLD 2003 कराची 277 in the absence of any specific provision in PPC for the payment of diyat by each of the offender in case of involvement of more than one offender in the commission of Qatl Ahmad, the law as contained in Holy Quran and Sunnah shall be applied। Since the present case 5 persons were named in the FIR, therefore applicant was required to pay 1/5 of the total diyat of the deceased। कुरान पाक के हवाले से बात की गई है कि PPC में जो है वो कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि अगर एक ही बंदे को कत्ल करने में ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं। तो जो मैंने केस लॉ आपके सामने पेश किया कि PLD 2003 कराची 277, इसके मुताबिक इसमें जो बंदे थे वो 5 थे जिन्होंने कत्ल किया था, तो हर एक का हिस्सा जो है वो 1/5 वो दियत अदा करेगा हर कोई। नाज़रीन कराम, रेट ऑफ दियत एट द टाइम जजमेंट इज़ पास्ड। Object and purpose of recovery of diyat amount was that the victim should be compensated according to the rate which was prevailing at the time of pronouncement of judgment। ये 2016 वायलाट 2085 में ये करार दिया गया है कि जब ऑर्डर पास होगा अदालत का, हुक्मनामा जारी हो जाएगा, जजमेंट वो दे देगी कि इतनी दियत के रकम के बदले में इसको रिहाई मिल सकती है, तो वो फिर वो रेट लगेगा जो उस साल होगा, और हर साल का वो सिल्वर के हिसाब से, चांदी के हिसाब से लिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त तकरीबन 43-44 लाख रुपए इस वक्त रेट है।
नाज़रीन इकराम, दियत के हवाले से हमने बात की। असल में इसमें हमारा मकसद सिर्फ ये था कि दियत को मजाक नहीं बना लेना चाहिए कि जी ठीक है बंदा कत्ल कर दिया तो फिर उसके बाद जो है वो हम जो है वो राज़ीनामा करवा लेते हैं। बासर लोग जो कि बासर होते हैं, वो तैयबा नामी एक बच्ची जिस पर जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया माहीन पर लड़की का हाथ जलाने का इल्ज़ाम था, उन्होंने मुकदमा के बाद डरा धमका कर इसके वालिदैन से राज़ीनामा कर लिया कि बच्ची की तरफ से गलत मुकदमा दर्ज कराया गया, जज साहब और उनकी अहलिया बेकसूर है। इसी तरह के एक और के मजीद खान अचकज़ई साहब ने दिन दिहाड़े जो था वो एक ट्रैफिक सार्जेंट को जो था वो अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया था। अताउल्ला नामी सिपाही को जरगून रोड पर अपनी गाड़ी से कुचल दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने ड्राइवर को हाज़िर किया, बाद में दियत और कसास की वजह से मदई को उन्होंने हाँक लिया और बाइज़्ज़त बरी हो गए। नाज़रीन इकराम, इसी तरह सानिया साहिवाल हमारे सामने मौजूद है, इसका बड़ा शोर बचा। यहाँ पर हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे दियत वाले, ये कुरान का हुक्म है कि अगर दोनों पार्टीज़ कबूल, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बासर लोग इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। वो तो वैसे भी कर सकते हैं दियत, तो फिर भी कंपनसेशन मिल गई। वो चाहें तो किसी को बगैर पैसे दिए भी जो है वो उनको जोर लगा कर अपना आप सुलह कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि ये दियत के ख़िलाफ़ इस तरह की जो बातें लिबरल फाशिस्ट करते हैं कि जी पैसे दे के बंदे को छोड़ दिया जाता है, ये मैटर नहीं है। वो बासर लोग तो ना भी पैसे दे तो कंप्रोमाइज़ उनके साथ दूसरा बंदा जो पहले ही मरा हुआ है वो करने पे तैयार हो जाएगा, ठीक है यार मज़ीद ना मारें। तो इसलिए दियत जो है बेसिकली अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस हवाले से जो हमें एक तरीक़ाकार समझाया है कि हम लोग इसको किसी तरीके से अल्लाह के निज़ाम के तहत इसको करें। खून का सिला या कीमत कदीम माशरों में भी होता रहा और हमारे इस्लाम ने फिर इसको अपनाया भी। नाज़रीन इकराम, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामी निज़ाम, कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज करे और ताकि अवामुल नास को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।